Welcome to one of its first kind of project by Vomiki Crew. Located at Galvi Beach in close proximity to Tarkarli Beach and the historical Malvan Fort, which is just 35 kilometers away. The Vomiki project will be accessible from 2 airports and 3 railway stations in close proximity. Sindhudurg Airport, which is already operational, is just 15 kilometers away, and Mopa Airport is just 60 kilometers away from the project. With such an easy accessibility by road, this project is just 17 kilometers from National Highway 66 and just 2 kilometers from State Highway 4. This project seamlessly blends convenience and comfort with easy access to transportation hubs and essential amenities for all our guests. Embark on new adventures and create unforgettable memories with your loved ones at this project. From sun-kissed beaches to thrilling water sports, there's something for everyone to cherish. Vomiki project is accessible from 3 railway stations in close vicinity, which are Kudal railway station being 20 kilometers away, Samantwadi railway station being 30 kilometers away, and Sindhudurg railway station being 40 kilometers away, all in the close proximity, making it much easier for commuters and visitors. Book your escape today and experience the ultimate retreat for women, men and kids, which relates to the DNA of Vomiki Group. Turn your dream of owning a second home into reality. Log in at www.vomikiinfra.com/Goa. I believe location is the super important thing. जो view है, it's beautiful. So we are one of very few developers who has got the sea-facing plot, I believe. So जो मैं अभी बात कर रहा था कि जब जो हम गोवा की बात करते हैं ना, तो जो सुनने वाला है, जो हमारा क्लाइंट है, he imagines a seaside life or a place where he is investing, where he should have an access to the sea or beach in next 10-15 minutes drive or maybe walking distance. So हमारा जो ये प्लॉट है, this is a flat plateau, we call it plateau, जो पहाड़ के ऊपर होता है. So it is on the height of 77 meters, and let me show you the panoramic view of the site. Okay, so this is the project. ये हमारा प्रोजेक्ट है. ओके, सो इसकी ना अभी प्रोडक्ट के अंदर हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको मोटा मोटा आसपास के डेवलपमेंट बता देता हूँ. सो ये कालवी बीच है एंड इसके आगे आपका मालवन फोर्ट है. सो इन केस आप गोवा से ऊपर की तरफ चलते हैं महाराष्ट्र में, तो एवरीबडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट मालवन फोर्ट. ये छत्रपति शिवाजी का फोर्ट था. सो मराठीज हैव वेरी सॉफ्ट कॉर्नर. ये टूरिज्म के मामले में बहुत एक हिट एरिया है. लॉट ऑफ महाराष्ट्रियंस प्रेफर दिस प्लेस. जब भी वो फैमिली आउटिंग के लिए निकलते हैं तो मालवन फोर्ट उनकी बकेट लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे रहता है. So now comes to the location. So अभी what is happening, जैसे आप देखेंगे ना गोवा में, गोवा का नक्शा कुछ इस तरीके से है. सो ये आपका गोवा हो गया, ये आप जो बाउंड्री देख रहे हैं. सो गोवा शेयर्स बाउंड्री विद 2 स्टेट्स. ऊपर उसके महाराष्ट्र का सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट लगता है और नीचे उसका कर्नाटका लगता है. सो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर कोविड, जब रश बहुत बढ़ने लगा गोवा में, या अ लॉट ऑफ प्लेसेस हैज अ गुड रश. आप देखते हैं हम लॉन्ग वीकेंड आते हैं तो वृंदावन, बागेश्वर धाम, खाटू श्याम जी, हिमाचल, उत्तराखंड, गोवा, ये सब जगह वो है कि 3 दिन के वीकेंड में भी पीपल जनरली आफ्टर कोविड ऐसा ज्यूम किया जाता है कि बहुत लोग ना दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग.
सो जो उछाल आया है वो 2020 के बाद से ही आया है। तो व्हाट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज कि जो भी प्रोविजंस थे, जो भी अकोमोडेशन थी गोवा में, दैट स्टार्टेड फिलिंग। तो जैसे 5,000 होटल का अकोमोडेशन स्पेस था, तो न्यू ईयर पे वो 55,000 की बुकिंग्स भी आई हैं जो ओवर सब्सक्राइब्ड है इतना ज्यादा। सो जो गोवा जिस चीज के लिए फेमस है, वो है हमारा जो रशिया क्राउड आता है, जो रशियंस इंडिया में आते हैं उनकी एक्सट्रीम विंटर सिचुएशंस में। सो सितंबर से लेके मार्च तक, मार्च एंड तक वो लोग यहाँ रुकते थे। दे यूज टू हैव इट, क्योंकि उनकी वेदर जो गोवा का है वो बहुत फेवरेबल है उनकी कंडीशन के हिसाब से। तो दोज रशियंस एंड टूरिज्म जो आता था गोवा में फैमिलीज के साथ में, दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग टुवर्ड्स अपर साइड ऑफ गोवा एंड द लोअर साइड ऑफ गोवा। सो दैट इंक्लूड्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो ये जितना आप बेल्ट पूरा देखते हैं ना, ये कोंकण बेल्ट लगता है, ये आपका रत्नागिरी से साउथ गोवा के आगे तक जाता है। सो कोंकण बेल्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बेल्ट। जितनी भी हम मूवी की शूटिंग्स देखते हैं वो सब कोंकण में शूट होता है, ये पूरा एरिया कोंकण बेल्ट में आता है। अब क्या होता है कि जैसे ही 2014-15 में मिस्टर मनोहर पारिकर जी डिक्लेयर करते हैं कि हम नॉर्थ गोवा को केटर करने के लिए मोपा एयरपोर्ट बनाएंगे। सो ये आप देखते हैं जहाँ ये वास्को डी गामा है, दिस इज दी प्रीवियस एयरपोर्ट जो आपका डब्ल्यूएम एयरपोर्ट है। इसका ऊपर का पोर्शन पूरा नॉर्थ गोवा है और इसके नीचे का पूरा पोर्शन साउथ गोवा में आ जाता है। सो आउट ऑफ 100 टूरिस्ट जो आते थे गोवा में, 95 यूज टू गो टू नॉर्थ गोवा बिकॉज ऑफ दी पार्टी कल्चर, नाइट लाइफ वहाँ की बहुत फेमस है। एंड ओनली 5% जनता यूज टू गो टू साउथ गोवा फॉर दैट मैटर। सो डब्ल्यूएम एयरपोर्ट जो था ये लाइक करता था साउथ गोवा में। सो आपका साउथ गोवा डब्ल्यूएम एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाता है और इसका डिस्टेंस नॉर्थ गोवा से बहुत ज्यादा था। तो 2014 में गोवा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड कि ठीक है हम एक मोपा एयरपोर्ट बनाएंगे जो आपका बनेगा नॉर्थ गोवा के पैरेलल, और जो आपका केटर करेगा, सर्विस देगा नॉर्थ गोवा के आने वाले टूरिस्ट को। सो द मोमेंट मोपा एयरपोर्ट गॉट डिक्लेयर्ड, व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग इज कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने भी लोग जो वहां लैंड चंक्स में पैसा डालते थे, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर प्लेस नियर मोपा एयरपोर्ट। सो ये आपका मोपा एयरपोर्ट है, इसके पैरेलल पूरा नॉर्थ गोवा लग जाता है। दिस इज डब्ल्यूएम एयरपोर्ट, द प्रीवियस एयरपोर्ट, एंड इसके नीचे सारा साउथ गोवा लग जाता है, ये वाला। सो अब क्या होता है कि गोवा और महाराष्ट्र इज जस्ट लाइक यूपी एंड हरियाणा। सो जैसे हम बात करते हैं ना, जेवर एयरपोर्ट पे डेवलपमेंट्स आ रही हैं। सो गोवा में प्रॉब्लम क्या है कि गोवा में जो लैंड की टाइटल है ना, वो टाइटल क्लियरेंसेस में बहुत प्रॉब्लम है। सो गोवा हैज गॉट देयर ओन पोर्चुगीज लॉ बुक। गोवा में आपका हर जो भी ट्रांजेक्शन आप प्रॉपर्टी की करते हैं उसकी अपनी एक अलग फॉर्मेलिटीज होती है। वेर एज महाराष्ट्र इज अ बिट चीपर एंड अ बिट इजी टू हैंडल। महाराष्ट्र का जो लैंड है वो फ्री होल्ड लैंड लगता है। गोवा का जो लैंड है उसमें 2-3 तरह की किस्मों के लैंड होते हैं बेसिकली। और गोवा के जो लैंड है उसमें पूरी ट्रेल आती है पीछे से। इनके हिसाब सेलर और बायर जब बैठते हैं तो सेलर की पूरी ट्रेल बुक आती है पीछे से कि उसके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी कब थी, उसके भाइयों के नाम पे आई, देन उनके फादर के कितने बच्चे थे, उनमें से किसका एनओसी पेंडिंग है। तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है ना कि गोवा में आदमी अमूमन जल्दी से हाथ नहीं डालता है अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ऑथेंटिक एक डील है कि क्लियर है पेपर्स पे। और गोवा ड्यू टू नेम ऑफ कि गोवा में है तो आपकी प्रॉपर्टी हमेशा महंगी मिलती है आपको। सिंस द मोपा एयरपोर्ट वाज decided to be on the border of Maharashtra and Goa, so इसका बेनिफिट लिया आपका महाराष्ट्र के लैंड पूलर्स ने। तो यहाँ पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आने लगे महाराष्ट्र में। एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर कर दिया अपना इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट के रूप में। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिक्लेयर कि ठीक है मैं जो भी डेवलपमेंट अपना लेके आऊंगी, जो भी मेरा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो टूरिज्म हब मैं बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं अपने सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट को। ड्यू टू 2 रीजंस, जस्ट नेक्स्ट टू गोवा फर्स्ट, सेकंड इसके एक्सेस थी मोपा एयरपोर्ट से, राइट। सो ये जो आप बेल्ट देखते हैं इसमें आपका ये वेंगुर्ला है और उसके ठीक नीचे आरंबोल है। सो आरंबोल इज द लास्ट बीच आई वुड से जो बहुत बहुत फेमस बीच है, ये वाला बीच। So if you'll go to South Goa, Palolem beach is famous for the foreigner crowd, और नॉर्थ में अगर आप आते हैं तो आरंबोल इज वेरी फेमस कि है भाई आपको जो फॉरेन क्राउड आता है, जो पार्टी कल्चर है, वो आरंबोल में बहुत फेमस है। तो आरंबोल इज द लास्ट बीच ऑफ गोवा। आरंबोल से अगर आप ऊपर चलते हैं तो ऊपर की तरफ 1 घंटे के डिस्टेंस पे ये हमारी साइट है जहां आप हार्ट शेप देख रहे हैं। सो मैं उस पर भी आ रहा हूँ अभी। सो ये पूरा पोर्शन आपका महाराष्ट्र लग जाए। अब इस लोकेशन पे इस पूरी बेल्ट को एक्सेस देती है अल्टीमेटली मालवन तक। सो मालवन से लेके गोवा का आरंबोल बीच, ये बहुत ज्यादा फेमस है महाराष्ट्र के टूरिज्म के अंदर, ठीक है। सो इट इज अ क्लियर सैंड बीच। बोलते हैं कि जो कालवी बीच के ऊपर एक बीच है यहाँ पर तारकार्ली बीच। तारकार्ली बीच
is the cleanest beach of Maharashtra. This beach, okay. मालवन हैज गॉट छत्रपति शिवाजी का फोर्ट, जिसके लिए बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। उसके ठीक नीचे आ जाता है कालवी बीच, जहाँ पर हमारी साइट है। इट इज नोन एज गोल्डन सैंड बीच। ये गूगल पे आप देख सकते हैं, गूगल मैप पे आप डालेंगे कालवी बीच तो आप वहाँ रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं। सो इट इज नोन एज गोल्डन सैंड बीच। यहाँ की मिट्टी का टेक्सचर बहुत गोल्डनिश है इसलिए। एंड यहाँ पे एक रेयर टर्टल ऑफ स्पीशीज आती है। अभी लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने फोटो क्लिक किया था इनका। ये नेस्टिंग के लिए आता है। ये टर्टल का जो स्पीशीज है ये नेस्टिंग के लिए आता है। इफ यू कैन सी, हमारी साइट के बिल्कुल बाहर लगा हुआ है जहां से आपको एक्सेस मिलता है। सो ये फेब से अर्ली फेब टू मिड मार्च एंड तक यहाँ पर नेस्टिंग के लिए रहते हैं। एंड यहाँ के गांव वाले बहुत प्रिक्योर करते हैं इनकी नेस्टिंग को। सो कालवी बीच के नीचे आपका आ जाता है वेंगुर्ला। वेंगुर्ला इज अगेन वेरी फेमस। अभी गवर्नमेंट जितना भी टूरिज्म डेवलपमेंट कर रही है वो आपका वेंगुर्ला एरिया के ऊपर कर रही है। सो वेंगुर्ला इज द नेक्स्ट फर्स्ट डेस्टिनेशन जो आपका गोवा के बाद पड़ता है। उसके बाद यहाँ एक छोटा डिस्ट्रिक्ट आता है, एक छोटा सा कस्बा आता है जिसको शिरोडा बोला जाता है, जहाँ आप ये नदी देख रहे हैं। यहाँ पर होटल ताज आ रहा है। सो होटल ताज विल बी ऑपरेशनल बाय एंड ऑफ दिस ईयर। होटल ताज का यहाँ पे काम चल रहा है और उसके ठीक नीचे आपका गोवा आ जाता है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सो वी आर सिटिंग ओनली 1 hour डिस्टेंस फ्रॉम गोवा एंड वी हैव गॉट 2 एक्सेस नाउ। अब आपको मैं पहुंचाऊंगा कैसे साइट पे। सो वी हैव गॉट 2 एक्सेस, 2 एयरपोर्ट एक्सेस। फर्स्ट इज द मोपा एयरपोर्ट। ये आपका मोपा एयरपोर्ट है। यहाँ से जो हमारी साइट का डिस्टेंस है ये एग्जैक्ट 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। और यहाँ पे आने के लिए आपको जो टाइम लगता है वो लगता है 1 घंटा 15 मिनट का। ओके, सो 1 घंटा 15 मिनट का फर्स्ट एक्सेस आपका आ गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। डेबुलेम एयरपोर्ट जो इसके नीचे आता है वहां से करीब 2 घंटा, पौने 2, मतलब 1 घंटा 45 मिनट का रास्ता है। ठीक कालवी के ऊपर इफ यू सी हमारा रहता है चिपी एयरपोर्ट विच इज सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट। ये आपका चिपी एयरपोर्ट आ जाता है। सो सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट लगता है ये हमारी साइड से 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 25 मिनट्स का ड्राइव है। इस एयरपोर्ट पे अभी एक्सपेंशन मोड पे है ये एयरपोर्ट। अभी इस एयरपोर्ट पे दिन की 3 फ्लाइट्स आती हैं और वो जो फ्लाइट्स आती हैं वो आती है मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद से। सो अलायंस एयर यहाँ पर सर्व करता है, इस एयरपोर्ट को यूज करता है। सो मुंबई, बैंगलोर और हैदराबाद से फ्लाइट्स अभी आती हैं चिपी एयरपोर्ट के ऊपर। सो वी हैव गॉट फर्स्ट एक्सेस विच इज चिपी एयरपोर्ट। और अभी एज पर टूरिज्म जैसे बढ़ रहा है महाराष्ट्र में, सो गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग कि मैं यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से भी एक्सेस देना स्टार्ट करूँ फ्यूचर में जो भी फ्लाइट्स आएंगी। सेकेंड इज मोपा एयरपोर्ट। देन वी हैव गॉट 2 हाईवेज। जो आपका एक ये बेल्ट दिख रहा है दिस इज नोन एज स्टेट हाईवे 4। ओके, चिपी एयरपोर्ट के साथ से जो जा रहा है इसको सागरी महामार्ग बोला जाता है बेसिकली। सो आप जैसे आप साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा की तरफ जाते हैं ना, तो आपका एक बीच के साथ में एक रोड चलता है विच इज स्टेट हाईवे 4। वही हाईवे है जो आगे आके हमारा पूरा रत्नागिरी तक कवर करता है। सो इट कवर्स ऑल दी बीच एक्सेसेस। आप जैसे बागा पे घूम रहे हैं तो आपका बोर्ड दिखेगा आपको, लेफ्ट में आपके बागा है। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर वहीं से एक्सेस आपको वेगेटोर का मिल जाएगा। आप थोड़ा आगे जाएंगे आरंबोल का एक्सेस इसी हाईवे से मिलेगा आपको। तो दिस इज द स्टेट हाईवे। तो लोग जनरली इसको प्रेफर करते हैं अगर वो बीच साइड में कोस्टल बेल्ट को अगर एक्सप्लोर कर रहे हैं तो। सेकेंड इज दी NH66, ये जो आपका जा रहा है। सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई टिल कन्याकुमारी। सो दिस इज नोन एज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ साउथ इंडिया ऑफ दिस कोस्टल बेल्ट। तो महाराष्ट्र से, गुजरात से जो भी लगेज, जो भी कार्गो ट्रेवल होता है टूवर्ड साउथ इंडिया, वो ट्रेवल करता है आपका NH66 से। सो दिस इज अ 8 लेन हाईवे और इसमें बीच में कुछ जगह पे पैचेस पे 6 लेन था, तो गवर्नमेंट उस पर अभी अग्रेसिवली एक्सपेंशन कर रही है। सो इस NH66 से ही आपका मोपा एयरपोर्ट पास पड़ता है। तो हमारी साइट पे आने के लिए आपको 2 एक्सेस मिलता है। NH66 यहाँ से आपका 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारी साइट का, और स्टेट हाईवे से केवल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस एयरपोर्ट एंड रोड एक्सेस वी हैव गॉट 3 रेलवे स्टेशन नियर बाय, जो भी आपने वीडियो में देखा होगा। फर्स्ट इज कुडाल। कुडाल रेलवे स्टेशन हमारे यहाँ से 25-30 मिनट्स का ड्राइव है। सेकेंड इज सावंतवाड़ी, ये हमारी साइड से 40 मिनट्स है। और थर्ड इज सिंधुदुर्ग, वो यहाँ कहीं पर पड़ता है रेलवे स्टेशन। सो वो हमारी साइड से 1 घंटे का डिस्टेंस है। सो सावंतवाड़ी एंड कुडाल हैज गॉट हॉल्ट्स फॉर स्मॉल ट्रेन्स। बट अगर आप राजधानी से जा रहे हैं टुवर्ड्स लेट्स से गोवा जा रहे हैं, मडगांव की ट्रेन है आपकी, या केरला कोचिंग की ट्रेन है, तो आपको जो हॉल्ट मिलता है वो आपका सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन से मिलता है, जो हार्डली 1 घंटे का ड्राइव पर है हमारी साइड से एग्जैक्टली। ओके जी, नाउ कमिंग टू द साइड, ये हमारी साइड का कुछ एलिवेशन है। इफ यू सी, इस तरफ आपका गोवा पड़ जाता है, नॉर्थ ऑफ गोवा। वेंगुर्ला बीच, होटल ताज,
मोपा एयरपोर्ट समवेयर हेयर 60 किलोमीटर अवे। ये आपका एनएच हाईवे निकल गया पीछे से, 66 किलोमीटर इधर कहीं पड़ता है। स्टेट हाईवे 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर साइड। कुडाल रेलवे स्टेशन 19 किलोमीटर। चिपी एयरपोर्ट, सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट, ये आपका हाफ एन आवर। तारकर्ली बीच, क्लीनेस्ट बीच ऑफ महाराष्ट्र, एंड आपका अपकमिंग सी वर्ल्ड। सो इट इज इन प्रपोजल ऑफ विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये कांग्रेस का इनिशिएटेड प्रोजेक्ट था। सो दे वांट टू मेड अ सी वर्ल्ड जिसमें आपका पानी के अंदर की एक्टिविटीज यू कैन हैव, जैसे दुबई में हम जाते हैं तो टनल में आप जाते हैं। सो इट इज ऑल दी एक बड़े लेवल का अम्यूजमेंट पार्क है अंडर द सी। सो ये अभी प्लान्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि मालवन में आ रहा है। एंड आपका ठीक सामने निवाती स्कूबा एंड डॉल्फिन पॉइंट पड़ता है हमारी साइड की। सो दिस इज वेरी फेमस। अगर आप गोवा में, साउथ गोवा में ट्रेवल कर रहे हैं एंड इफ यू वांट टू गो फॉर अ स्कूबा डाइविंग, देन द गाइड विल टेक यू टू दी पेललम बीच। बट इन केस आप नॉर्थ गोवा की तरफ है ना, तो आपको यहीं पर लेके आया जाता है महाराष्ट्र में स्कूबा के लिए। सो दिस इज जस्ट टू लेट यू नो कि यहाँ की जो क्लियर सैंड और जो वाटर क्वालिटी है, दैट इज फार क्लीनर देन नॉर्थ गोवा, आई वुड से। सो साउथ गोवा का जो बीचेस का एक एक्सेस है ना, जो क्लीन बीचेस है, वही बीचेस आपको ये महाराष्ट्र की बेल्ट पे मिलते हैं। ये इधर आपका कालवी बीच आ जाता है। इसके साथ में कि बैक वाटर बोलते हैं, मीठे पानी का एक स्रोत जा रहा है पीछे से। दिस इज कालवी गांव, एंड ये पीछे से आपकी एक्सेस आई हमारी साइड पर आने के लिए फ्रॉम स्टेट हाईवे, ओनली 2 किलोमीटर्स। तो इफ यू सी ऑल दीज बीचेस आर नॉट शेयर्ड बीचेस, ओके। आप देखेंगे ना जितने भी बीचेस का जो फॉर्मेशन है ना, ये सारे आपके पर्सनल बीचेस हैं। मतलब आपको रोड से अपना गाड़ी लेके सेपरेटली अंदर आना पड़ता है स्पेसिफिकली इन बीचेस पे पहुंचने के लिए। सो इन दैट वे हमारे पास जो एक्सेस आता है वो पूरे कालवे बीच का आता है। ये पूरा कालवे बीच है। सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट बॉलीवुड, जितने भी महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट जोन इज हियर। ये आपका पीछे एक जोन आता है, एक छोटा सा कस्बा है जहां पर आपको विवेक ओबराय, शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, इन सब के बंगलोज हैं। सो दे जनरली कम एंड स्टे हियर। की ऑफ बीट लोकेशन है, क्लियर सैंड बीच है, पीसफुल लाइफ है यहाँ पर। एंड हमारी साइड से ही आधा घंटा आगे, ठीक इस तरफ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ साइड, एक कोको शंबाला प्रॉपर्टी है। लेट मी सी, अगर मेरे पास खुला हुआ है तो। तो ये जो कोको शंबाला रिजॉर्ट है, ये हमारी साइड से हाफ एन आवर टुवर्ड्स मालवन पड़ता है बेसिकली। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज अ बीच साइड प्रॉपर्टी। मैं आपको ही शो कर रहा हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट की किस किस तबके का या किस सेगमेंट का क्लाइंट प्रेफर करता है। सी हियर, इनका जो लो सीजन है फ्रॉम 1 मई टू 30 सितंबर, दे चार्ज 50,000 रुपीज पर डे पर विला। ओके, स्टैंडर्ड सीजन में फ्रॉम 1 अक्टूबर टिल 30 अप्रैल दे चार्ज 80,000 पर नाइट। ऐसा क्यों है भाई? एंड इन कुछ ज्यादा ही नहीं है? भाई एक्चुअली ये ना सेलिब्रिटीज के लिए बहुत बहुत एक फेमस एरिया है ये। सो कोको शंबाला पे जो आप फीडबैक देखेंगे ना, इट इज सचिन तेंदुलकर, आमिर खान फेवरेट हैंग आउट प्लेस। अपनी फैमिली के साथ वो आते हैं, तो दे प्रेफर कोको शंबाला। सो इट इज अ क्लोज बीच साइड प्रॉपर्टी। यू कैन गो, यू कैन, अब आप अपना बारबेक्यू कर सकते हो, या फिर आपको पेंटिंग करने का मन है, आप पेंटिंग कर सकते हो। इट इज अ, आपको एक घर वाला कंफर्ट मिलता है इस प्रॉपर्टी। एंड मेन सीजन में जैसे कि आप हमें इंक्वायर कीजिए, हम उस टाइम पे बता पाएंगे कि हमारा पर नाइट का क्या क्या चार्जेस। सो दिस इज जस्ट टू लेट यू नो, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यार गोवा से 1 घंटा दूर मीन्स कि हम टूरिज्म से भी 1 घंटा दूर चले गए, बट ऐसा है नहीं। अभी अभी मोपा एयरपोर्ट की एक्सेस के बाद ना, जितने भी कॉर्पोरेट्स के इवेंट्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स के ऑन साइट्स होते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर ओवर। सो महाराष्ट्र इज कंपैरेटिवली पीसफुल। वहाँ की लाइफ थोड़ी इजी है। वहाँ पे यू कैन हैव योर ओन प्रॉपर्टी, यू कैन चिल, आप आराम से कर सकते हो। आपको वो नहीं है कि पार्किंग का बहुत समस्याएं हैं, महंगाई है, होटल्स बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, वो दिक्कतें नहीं महाराष्ट्र के अंदर। सो कमिंग टू द साइड, सो दिस इज द लेआउट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। ये आप देखते हैं, इट इज अ 78 एकर्स लैंड बैंक टोटल। ये जो आप देख रहे हैं, ये टोटल 78 एकर्स का लैंड बैंक है। इसमें ये जो आप लाइंस देख रहे हैं, ये फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। सो दीज लाइंस कवर दी CRZ गाइडलाइन। सो कोस्टल रेगुलेटरी जोन आपका आता है जब भी आप समंदर के किनारे कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो गवर्नमेंट हैज देयर ओन गाइडलाइंस इन टर्म्स ऑफ कोस्टल रेगुलेटरी जोन। तो वो गाइडलाइन ये होती है कि बीच से, मतलब जहाँ पे आपका टाइड आती है लास्ट,
वहां से लेके फर्स्ट 200 मीटर तक आप कुछ भी परमानेंट नहीं बना सकते हैं। ओके, जैसे आपके शैक्स जो होते हैं डिसमेंटल हो जाते हैं, बांस की बैम्बूज के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर होता है। सो 200 meters तक यू कैन नॉट मेक एनी परमानेंट स्ट्रक्चर। फ्रॉम 200 मीटर टिल 500 मीटर, यानी कि नेक्स्ट 300 मीटर्स में जो आपका FAR है, दैट विल बी 1/3 ऑफ द एक्चुअल FAR, जो हमारा पीछे का FAR है। ओके, सो इन दैट वे यू नीड टू लीव मोर ऑफ ग्रीन स्पेस, और आप अपने प्लॉट के अंदर 1/3 बिल्टअप एरिया बना सकते हैं, जो आप इस 500 मीटर के बाहर वाले एरिया को बना सकते हैं उसके कंपैरिजन। ओके, सो इट इज अ मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। कमिंग टू द पॉइंट, अगर मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, सो दिस 27 एकर्स ऑफ पैच हैज ऑल दी प्लॉट्स। इसमें हमारे सारे प्लॉट्स का एरिया कवर कर रहे हैं। जो मिनिमम साइज आपका प्लॉट का आता है वो आता है 250 स्क्वायर मीटर। मैं दूसरा खोलता हूँ। सो मिनिमम साइज इज 250 स्क्वायर मीटर, एंड उसके बाद जो प्लॉट का साइज आता है वो आपका आता है 300 स्क्वायर मीटर। सो वी हैव गॉट ओनली टू साइजेस in terms of plot sizes. Okay, so जो पीछे वाली बेल्ट आप देख रहे हैं ये 300 मीटर्स की है, और रेस्ट सारे आपके 250 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। ये आपकी मेन एक्सेस रोड हो गई प्लॉट्स की तरफ। पीछे आपका रिक्रिएशनल एरिया आ गया, जहाँ पे आपका मेडिकल की फैसिलिटी हम दे रहे हैं, फार्मेसी का फैसिलिटी दे रहे हैं, और आपका हाइपर मार्ट का फैसिलिटी दे रहे हैं ऑन द बैक साइड। अब ये 500 मीटर के अंदर जो ये आपका ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हैं, दिस एरिया इंक्लूड्स विलास एंड ग्रीन एरिया। So this is the type 1 villas, ये आगे वाली, and these are the type 2 villas again on 250 square meter plot। बीच में आपका ये पूरा ग्रीन एरिया आ गया, एंड ये पूरा ग्रीन एरिया आ गया। आप यहाँ से जैसे ही होटल में आप अपना प्रॉपर्टी में एक्सेस में आप एंटर करते हैं, ऑन योर राइट यू विल हैव दी 5-star होटल। सो वी हैव गॉट अ signed LOI with Radisson Red। सो इट इज 119 कीज होटल, जो कि रेडिसन रेड इस पे अपना होटल डेवलप करने जा रहा है। इसके सामने आपका शेयर्ड क्लब हाउस हो गया 8000 स्क्वायर फीट के ऊपर, एंड दिस इज ऑल योर रिक्रिएशनल एरिया। इसमें विल स्टार्ट विद द इंफिनिटी पूल। 2 एकर्स के ऊपर ये इंफिनिटी पूल बन रहा है आपका। सामने आपका वाटरफॉल आ गया, जो आपका रिसाइकिल होकर वापस ऊपर आ जाता है। इसके साथ में जो आप ये पिंक पोर्शन देख रहे हैं, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द लैंड। सो अगर आप जैसे आपने जो वीडियो देखा है, आप पवन भाई, आपने बोला 2 एकड़ में स्विमिंग पूल है। हाँ जी, इंफिनिटी पूल। 2 एकड़ इन्फिनिटी हाँ पूल जी, इन 2 एकड़, मतलब क्लोज टू हाँ जी, हाँ 88,000 जी, स्क्वायर फीट। जी सर। सर ये आपका ना क्लिफ एक्चुअली आगे का। ओके। सो ये इसमें जो था ना नेचुरल पानी स्टोर होता है, ओके। तो उसी को हम प्रोविजन करके वी आर मेकिंग इट एज अ इन्फिनिटी पूल। सो कोस्टल के साथ में ना यू कैन नॉट आप ना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते लैंड ऑफ नेचर ऑफ लैंड को, और स्पेशली 500 मीटर के अंदर। तो ओके। वी हैव कन्वर्टेड दिस इनटू इन्फिनिटी। ओके, मैं इसका आपको रेफरेंस इमेज दिखा देता हूँ कि ये किस हाइट पर आ रहा है। सो ये आपका क्लिफ है। ये हमारा 78 एकड़ का जो प्लॉट है वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है जी। अब इसमें जो आपने फ्रंट में पोर्शन देखा है, ये वाला पोर्शन ये इस स्लोप का है, और उसके बाद ये प्लेटो स्टार्ट हो जाता है, फ्लैट। सो दिस स्लोप विल हैव 3 परमानेंट शैक्स। ये आपके 3 परमानेंट शैक्स हो गए, जहां से आपका इन रूम, आपका डाइनिंग, आपका वॉशरूम का फैसिलिटी और सिटिंग एरिया है, और किचन एरिया यहाँ पर बनेगा। सो इफ यू वांट टू, जैसे हम गोवा जाते हैं, एक नॉर्मल शैक्स होता है, हमारे आके बैठते हैं, सामने समंदर है, और हम वी कैन हैव आवर फूड और ड्रिंक्स में भी, तो वो सारा एरिया आपका यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो स्लोप आता है नीचे, जो हमारे को एक्सेस देता है बीच के ऊपर, इस पे जो हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं, जो आप स्मॉल पोर्शन ऑफ पिंक ब्लॉक्स देख रहे हो, दिस इज दी हैंगिंग शैक्स। ये कुछ इस तरीके से बनने जाए। ये 400 स्क्वायर फीट का एक हैंगिंग शैक है। दिस वी कैन नॉट सेल दीज, बट वी कैन यूज इट फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। सो 32 यूनिट से ये छोटे छोटे जो पिंक पोर्शन आप देख रहे हो। सो जैसे आप इंडोनेशिया जाते हैं, वहां पे डव होम्स के कल्चर के नाम से बहुत फेमस है, यू नो। सो आप यू कैन हैव अ इन्फिनिटी व्यू ऑफ द सी, बट बाहर से आपको कोई नहीं देख सकता है। और यहाँ पे आपको इन रूम डाइनिंग मिलता है, आपको जो भी इन रूम सर्विसेज मिल सकती है, आपको कुछ भी खाना है तो फ्रॉम दी परमानेंट शैक्स यू कैन कॉल एंड ऑर्डर योर फूड और ड्रिंक्स। तो यहाँ से एक्सेस मिलती है आपको इन लव होम्स के लिए। सो ये हम यूज करेंगे, जो हम इसमें आपका रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस वाले पोर्शन से। So we have got recreational area on the front, then we have got villas and hotel in the middle section,
and then we have got the plotted area in the last. So ये जो टाइप 2 विलाज है ना सर, आप जो देख रहे हैं इसमें जो स्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो दीज ये जो तो आप आर्क शेप में सी शेप में देख रहे हैं, ये आपके इंडिपेंडेंट विलाज है। ओके, सो इंडिपेंडेंट विलाज से मेरा मतलब होता है जिसमें हम जमीन से आपको विला बना कर देते हैं। ऑन दी सेकंड जो आपके विलाज हैं, दीज विल बी विलाज, बट ये सेग्रीगेटेड होंगे, इनका बाइफर्केशन होगा एंटर करने के बाद में, दोनों तरफ आपका ग्राउंड फ्लोर एंड ऑन योर फर्स्ट फ्लोर। सो विल गोना मेक कॉन्डोमिनियम्स इन दीज विलाज। तो ये आपकी सिंप्लेक्स या इंडिपेंडेंट फ्लोर बना के हम बेचेंगे। सो वी हैव गॉट टू ऑप्शंस ऑफ विलास, वन इज स्टैंडअलोन जो आपको जमीन से मिल जाता है, एंड सेकंड इज फ्लोर वाइज, कि आपको भाई फ्लोर वाइज आप विलास लेना चाहते हो तो आप फ्लोर वाइज भी कर सकते हैं इसमें। फ्लोर वाइज विला का मतलब कि ग्राउंड पे प्रॉपर एक अलग यूनिट, फर्स्ट पे एक अलग यूनिट, सेकंड पे एक अलग यूनिट, राइट? हाँ, बट इसका एक्चुअली अमित भाई जो इसका जो हाइट हमारे पास लिमिटेशन है ना, दैट इज ग्राउंड एंड फर्स्ट ओनली। ओके, तो सो ग्राउंड वी एंड कैन फर्स्ट नॉट, मतलब हम दो विला की बात करें एक यूनिट के अंदर। हम एक्चुअली अगर आपका एक जो ब्लॉक बन रहा है उसमें जो कॉन्डोमिनियम्स की मैं बात कर रहा हूँ, सो इट इज मेड ऑन टू 500 स्क्वायर मीटर फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज ओके, नॉट मेड ऑन 50 स्क्वायर मीटर। तो राइट, 500 स्क्वायर मीटर में राइट 250 लेफ्ट 250 होता है, ठीक है जी। ऑन एवरी 250 चंक वी हैव गॉट वन रूम हियर एंड वन रूम हियर, आई मीन वन विला हियर, वन कॉन्डोमिनियम हियर, एंड ऑन ओके, फर्स्ट फ्लोर वी हैव गॉट वन कॉन्डोमिनियम एंड वन कॉन्डोमिनियम। ओके, ओके, मतलब एक साथ एक एक प्लॉट पे दो विला हो गए, आपस में वॉल शेयर है दोनों के, दैट्स इट, राइट? हाँ, दैट इज इट। ग्राउंड एंड फर्स्ट होगा वो आपस में स्टेयर से कनेक्टेड होगा, बट दो विला एक साथ कनेक्टेड है, राइट? बस ये फर्क है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, अच्छा, अब इसका जो जो बेस्ट चीज है ना इस लैंड की, वो ये है कि इसका जो कॉन्टूरिंग है ना, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, लेट मी शो यू। तो जब हम कॉन्टूरिंग की बात करते हैं लैंड की, सो इसको फ्लैट का ना, एक लैंड का ना एक पोर्शन होता है, कॉन्टूरिंग होता है कि व्हाट इज द डिजाइन ऑफ द लैंड, इज इट वेवी शेप, और जैसे आप यूजेन करते हैं या हम एक्सॉन देखते हैं, तो दैट इज अ प्रॉपर हिली साइड एरिया में आ जाते हैं वो। सो इस जो लैंड की कॉन्टूरिंग है ना, इट इज असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है। सो हर 8 मीटर के बाद में 2 मीटर की हाइट है इस लैंड के ऊपर। ओके, सो उसका बेनिफिट हमारे पोर्शन पे ये मिलता है कि आपके जो ये फ्रंट के विलाज हैं, so these are planned in such a way, let's say Mr. Amit has a villa in the first row and I have got villa in the second row. So अमित जी का विला जो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, सो यू विल हैव अ सी व्यू फ्रॉम ऑल योर विंडोज। आपका जो विंडो खुलता है सामने का, वो समंदर के सामने खुलता है। कॉन्टूरिंग क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो मेरे पीछे वाला जो विला का पोर्शन है उसमें भी आई हैव अ सी व्यू फ्रॉम माई बैल्कनी और फ्रॉम माई विंडो ऑन ग्राउंड फ्लोर इटसेल्फ। एंड देन अगेन जो थर्ड फ्लोर है उसका भी जो ग्राउंड फ्लोर है, दैट विल हैव अ सी व्यू बैल्कनी। ओके, दूसरा जो पीछे के विलाज आते हैं उनका क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑल द विलाज हैज गॉट अ सी व्यू बैल्कनी। सो इफ यू सी, आप देखेंगे ना, ये जो नेचर है, ये जो समंदर है, ये स्ट्रेट चले जाता है ऐसे, बट हमारा लैंड इट शुड बी लाइक ऐसा होना चाहिए था। बट जो हमारा जो ये पोर्शन है ना, ये थोड़ा टेढ़ा डिजाइन इसलिए किया गया है, सो दैट जिनका विंडो इस तरफ खुल रहा है दे शुड हैव अ दिस व्यू, और इधर वाले जो विलाज है दे शुड हैव दिस व्यू। सो आपका जो एक्सेस है ऑफ व्यू, दैट इज मोर वास्ट, मोर ब्रॉडर है, ओके, right? So Mr. Kachru, so Urban Holistic Innovation Company है, who has designed all the Bhutanese project, and अभी जो लास्ट उन्होंने बनाया है होटल लीला का आर्किटेक्चर किया उन्होंने अहमदाबाद में। So he has got good expertise in Maharashtra. He's been working there since 14-15 years. So he is taking care of all the aspect of this, township. So he is in process of कि भाई मैं ना इसको साइट को एक्सप्लॉइट नहीं करूंगा। So जो आपके पाथवेज होंगे वो आपके कुछ एक बुरास एक मिट्टी आती है उसके बनेंगे, सो दैट इट इज गुड फॉर द एस्थमेटिक पेशेंट, आपके लंग्स के लिए अच्छा है, शोर नहीं करते हैं वो। ऑल योर विंड डायरेक्शंस को देखते हुए हम लोग अपनी बर्ड आइवरी बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक ना चीज मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। सो जो मैं कॉन्टूरिंग की आपसे बात कर रहा था ना लैंड की, वो कुछ इस तरीके की है मैंने। ओके, ओके, कुछ इस तरीके की। सो अभी जनरली क्या होता है ना कि जब भी आप पहाड़ों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो यू नीड टू फिक्स अ रिटेंशन वॉल है। राइट, हम जब बेचते हैं ना क्लाइंट को, तो हम लोग बताते नहीं है कि सर आप पहाड़ पे ले रहे हैं, आपको अच्छा व्यू मिलेगा, आपको एक एक अच्छा ताजगी महसूस होगी, वेकेशन होम है। बट वी नेवर टेल देम कि आपका रिटेंशन वॉल का भी एक बहुत बड़ा खर्चा खर्चा है, एड ऑन होता है बिल्कुल, ना। बट हमारा जो ये लैंड है, ये कुछ अगर ऐसे जाता है तो हम जो प्रोविजन दे रहे हैं वो रिटेंशन वॉल का नहीं दे रहे हैं। वी गोना मेक योर विला और होम जो हम बनाएंगे उसके पिलर आपकी यहीं से नीचे से स्टार्ट होंगे।
सो इफ यू कैन सी, आपका घर जो है ना वो यहाँ पे नहीं बन रहा है, आपका घर पूरा ढलान के ऊपर बन रहा है. सो इन दैट वे इट इज मोर स्ट्रॉन्ग, मोर ऑथेंटिक, और इसमें आपको रिटेंशन वॉल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं. ये हमारे आर्किटेक्ट जी की रिपोर्ट है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. सो इसमें हमारा कितना रिक्रिएशनल, वी हैव गॉट जेन गार्डन, जो बैक साइड पे मैं आपको दिखा रहा था वो सब प्लान्ड है. वी हैव गॉट मेडिटेशन एंड योगा सेंटर. वी हैव गॉट ये प्रोविजन ऑफ गोल्फ कोर्स है हमारे पास. सो वी आर ऑन, अभी हमने कुछ अप्रूवल्स डाले हुए हैं. बाय द टाइम वो अप्रूवल्स आ जाते हैं तो ही हम गोल्फ कोर्स पिच करते हैं. देन वी हैव गॉट आयुर्वेदिक, स्लो लिविंग आजकल बहुत चल रहा है, हम वो सब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर. देन इंटरनल रोड जो है हमारी, वो ये कुछ सैंपल्स है. सो इट इज नॉट ब्लैक टॉप. सो जो आपके जॉइंट्स भी आ रहे हैं ये भी वैसे आ रहे हैं. एक और चीज आप देखेंगे, जैसे तो इसमें ना आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स है वो पोल पे नहीं है कोई भी. सो इट इज ऑन द लोअर साइड, लोअर हाइट के ऊपर आती है. सो दैट अगर आप उस फ्लोर पे जा रहे हैं तो योर आईज विल हैव अ नेचुरल, आप नेचुरल लुक देख पा रहे हैं साइड का. सो इट इज गुड फॉर योर आईज एज वेल. सो ऑल दीज जो जितने भी आपकी ये फैसिलिटीज है ये हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. सो ये है. सो बेसिकली अगर मैं इन रिस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट, इफ यू वांट, मैं आपको एक कंपैरिजन शीट दिखाऊं जो हमने बनाया हुआ है अपना एक आसपास के प्रोजेक्ट के साथ में. बिल्कुल बिल्कुल. मैं आपको पहले ना थोड़ा ज्योग्राफिकली थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि हम लोग कहाँ पर बैठे हैं. So if you'll see this river, no, this is the border of Maharashtra and Goa. ये ऐसा चले जाता है कुछ. ये आपका मोपा एयरपोर्ट हो गया, कुडाल रेलवे स्टेशन, चिपी एयरपोर्ट हमारी साइड, वेंगुर्ला, होटल ताज एंड आरंबोल. सो आरंबोल लाइज इन गोवा नाउ, एंड दिस इज योर फेमस मेन बीच बागा. तो हमारा जो एक्सेस है वो दो आता है, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको, सागरी महामार्ग, स्टेट हाईवे 4 एंड NH 66 जो जा रहा है बांदा कुडाल होते हुए. यहाँ पे आपका मोपा एयरपोर्ट आ गया इससे. और इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्ट, जो हमारे कंपटीटर्स हैं अभी, नाउ दिस इज वेरी अट्रैक्टिव, ये आप देखिएगा. सो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स वर्क्स विद दीज डेवलपर्स, या इनके लिए काम करते हैं. सो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या आता है कि एवरीबडी इज पिचिंग देयर प्रॉपर्टी एज गोवा गोवा गोवा, which is okay. We are next to Goa, so I think apart from Lodha, nobody has a land in Goa till date. Bhutani has it, but Bhutani पे भी अभी गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन के अंदर है, DLF and Bhutani both, So apart from Lodha, all the projects are coming in Maharashtra again. Now when we say that get your investment or make your investment in Goa, so एक जो client का imagination होता है ना, वो आ जाता है समुद्र कि भाई सी किधर है. सो ये जो आप जितने भी लोगोस देख रहे हैं ना, दीज ऑल हैव द लोकेशन राइट है. जैसे द ओरिजिन यहाँ लिखा है, ये एक्सॉन का कुडाल वाला वो है जहाँ पे उसका लोकेशन है एग्जैक्टली. उसके बाद में आपका यूजेन आ जाता है, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, द ओरिजिन एंड लोधा. सो आप देखेंगे ना कि ये सब जो लोकेशंस हैं, ये सब जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई भी सी के पास में नहीं है. दे ऑल हैव एक्सेस, फार एक्सेस फ्रॉम द सी. So in that way, we and Lodha Ratnagiri जो बना हुआ है, that is on the beach. But again, वो जो लोकेशन है वो हमारी साइड से बहुत दूर चला जाता है. So this is a render image of how your plots will look alike. कैसा लगेगा? And if you go to YouTube, आप थोड़ा सा ना एक बार YouTube पे भी सर्च कीजिएगा कालवी बीच के बारे में. So ये 3 साल पहले किसी यूट्यूबर ने पोस्ट किया हुआ है. This is just to show you the clarity of water. हम गोवा में जाते हैं, हमें इतना क्लियर वाटर कभी नहीं मिलेगा, नॉर्थ गोवा में. So this road will take you to our side. ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये कालवी गांव की तरफ जाती है, इससे आप ऊपर चढ़ के हमारी साइड पे चढ़ जाते हैं.
और जो मैं आपका हैंगिंग शैक की बात कर रहा था वो जिस तरफ से हम देख रहे हैं उसके राइट हैंड साइड। नाउ सो कमिंग टू बीच, अब ना थोड़ा सा हमारा ना पिच में एक दो चीजें हैं जो सी हमारा जो इंटेंट था ना इस साइट को बनाने का। सो इनिशियली वी वांटेड टू बिल्ड अ एंटायर प्लॉट थिंग, कि हम इस पे प्लॉट बना के इन्वेस्टमेंट करा के कि क्लाइंट ने अपना रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन कराया एंड देन ही इज फ्री और हम भी फ्री हो जाते हैं। बट टू द इंटेंट ऑफ यू नो टू मेकिंग दिस प्रोजेक्ट ऑन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन वाज टू एक्टिव दिस साइट। ऐसे नहीं कि बना के हमने डाल दिया। तो उससे चैलेंज ये आता है ना कि जो 80 लोग ने लिया था इन्वेस्टमेंट के लिए और जो 20 लोग बनाने वाले थे उस पे अपना घर, वो भी कुछ बिल्डअप नहीं करते हैं बिकॉज 80 लोग बिल्ड नहीं कर रहे, राइट। तो वो खाली रह जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी साइट्स। तो हमने क्या प्रोविजन किया कि हमने जैसे ही इसमें विलास इंट्रोड्यूस किए उसके बाद में रेडिसन केम इनटू द पिक्चर। तो हमारा जो ये विलास का पोर्शन है ये पूरा स्ट्रक्चर हो चुका था। बट देन रेडिसन आस्क्ड फॉर कि भाई ठीक है आपका जो ये फ्रंट का जो विलास का पोर्शन है, न्यू ईयर पे लेट से मेरे पास 119 कीज का होटल का प्रोविजन है और मेरे पास बुकिंग्स आती है 350 400। सो उस टाइम पे आई वुड लाइक टू यूज योर प्रॉपर्टी। मैं उस प्रॉपर्टी को आपकी पावर्ड बाय रेडिसन करके सर्विस मैं दूंगा अपने होटल से, बट आई कैन एकोमोडेट माई गेस्ट इन टू योर विलास। ठीक है, कि भाई आप जो है आप रेडिसन का रूम यूज नहीं कर रहे हो बट आप पावर्ड बाय रेडिसन के कैंपस में हो और आपको जो भी खाना या जो भी सर्विसेज मिल रहे हैं वो रेडिसन की तरफ से मिल रहे हैं। So the pitch with our project is first thing कि एक ये आपका vacation home है, it is a pure investment on such a beautiful coastal line next to beach. Okay, इसमें you can go and have a stay once in a while। आप साल में जब बच्चों की छुट्टी है तब you can go and have a good stay. Second, you can put your property on OTA. Now OTA is very much into the picture these days. तो जितने भी हमारे investors हैं, you know जो core investors हैं जिनके पास already ऐसी properties हैं, so OTA is online travel agent. Okay, now online travel agent जब मैं बोलता हूँ तो उसमें आपके नाम आ जाता है Make My Trip, GoIbiGo. So what they do, they never build a property on their own. They hire a property which is ready and they manage the property basically. सो वो क्या करेंगे, वो उसमें आपका मेंटेन करेंगे प्रॉपर्टी को, अपने स्टाफ को हायर करेंगे, अपने स्टाफ को अपॉइंट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे और उस पे जो भी रेंटल आएगा वो शेयर करेंगे लैंड ओनर के साथ। ओके, सो नाउ साउथ दिल्ली में इफ यू गो ना दीस डेज जीके पंचशील पार्क, अ लॉट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो लोग बाहर माइग्रेट हो गए दे पुट देयर प्रॉपर्टी ऑन मेक माई ट्रिप्स। ओके, सो यू कैन पुट योर प्रॉपर्टी ऑन ओटीएस फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। Third, we have our own venture, Mumeki Holidays Club. So that is the main this thing. I'll show you the profile of Mumeki Holidays Club. So Mumeki Holidays Club क्या करता है कि जो भी आपकी हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, सो दे मेंटेन दैट प्रॉपर्टी। ओके, सो अभी एज ऑफ नाउ वी हैव गॉट 4 प्रॉपर्टीज इन इंडिया जो हम बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन कर रहे हैं हमारे वर्टिकल। एंड इसमें आपकी होशियारपुर, भरतपुर, कुल्लू एंड मनाली में हमारी 4 प्रॉपर्टीज है। आई शो यू द प्रॉपर्टीज एज वेल, गिव मी अ मोमेंट, ये डाउनलोड हो रहा है बस। सो वोमैकी हॉलिडेज क्लब क्या करता है कि जो प्रॉपर्टीज बनी हुई है और जो चल नहीं रही है, जो यू नो, और ये चैलेंज आता है हमेशा हेरिटेज प्रॉपर्टीज जो रजवाड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन उनके बच्चे संभाल नहीं पा रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नो एवरी प्रोफेशन नीड्स एन एक्सपर्टीज टू रन दैट प्रॉपर्टी। उसमें आता है वोमैकी हॉलिडेज क्लब पिक्चर में। सो दिस इज आवर विंग। सो वी हैव दीज प्रॉपर्टीज एज ऑफ नाउ ऑन बोर्ड विद अस। सूर्या विलास पैलेस, ये आपका आ जाता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। दिस इज योर मनाली प्रॉपर्टी, कोटी रिजॉर्ट इन कुल्लू, मशोबरा के पास में गज रिट्रीट, ये आपका प्रॉपर्टी आ जाता है। सो आउट ऑफ 3 ये आपका हेरिटेज प्रॉपर्टी है, ये आपका हेरिटेज प्रॉपर्टी और ये लास्ट वाला आपका हेरिटेज प्रॉपर्टी है। सो व्हाट वोमैकी हॉलिडेज क्लब इज डूइंग नाउ, वोमैकी हॉलिडेज क्लब एक वास्ट लेवल पे प्ले कर रहा है इस साइड पे, इसका बहुत मेजर रोल है। फर्स्ट दे विल बी यूजिंग योर प्रॉपर्टी। ओके,
आप यू लेट्स से अब आप साल के बचे हुए महीनों में यू डोंट वांट टू यू नीड अ रिटर्न ऑन योर प्रॉपर्टी लेट्स से, देन यू कैन पुट योर प्रॉपर्टी ऑनलाइन। आप अपना प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करा सकते हैं वोमेकी हॉलीडेज क्लब के साथ में। सो WHC विल गिव यू अ प्रॉपर एग्रीमेंट साइन, और उसमें हम आपको एक नंबर ऑफ नाइट्स एश्योर कर देते हैं कि सर आपका ये प्राइस पे इतना रेंटल मैं लॉक कर देता हूँ फॉर सो मेनी नंबर ऑफ नाइट्स के लिए, कि मैं आपको लॉक कर रहा हूँ कि इतनी नंबर ऑफ नाइट्स में आपको एश्योर कर देता हूँ कि जब आप स्टे नहीं कर रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो मेरा केयर टेकर विल मैनेज योर प्रॉपर्टी, उसकी साफ सफाई, सर्विसिंग, मैनेजमेंट आई विल टेक केयर, और वो मैं आपका ये किराया है उसमें से मेरा ये फैसिलिटेशन जो भी सर्विस कॉस्ट है वो काट के मैं आपको इतना अमाउंट एक एश्योर्ड रेंटल के रूप में दे देता हूँ। So this is a vacation home where you can get a return on your investment as well. Plus, this is placed on a very beautiful location in Maharashtra, which has got close proximity to two airports. एंड यहाँ पे हम जब बताते हैं ना क्लाइंट को, तो कोको शंबाला प्लेज अ मेजर रोल है। सो जब ये क्लाइंट को ना एक डाउट होता है कि यार मैं चलो वहाँ यूज नहीं करूंगा तो वहाँ कितना ही रेंटल आ जाएगा, या उन बीचेस पे कितना ही अभी टूरिज्म जा रहा है। सो वी शो देम कोको शंबाला, वी शो देम वेंगुर्ला, वी शो देम मालवन पे कितना अभी टूरिस्ट आ रहा है। तो ये सब जो स्टडी है ना, दैट दैट क्रिएट्स अ बिग, एक जो माइंड गैप, एक माइंडसेट है ना क्लाइंट को पूरी तरीके से चेंज करने में बहुत हेल्प करता सो व्हाट रेंटल वी कैन एक्सपेक्ट, मतलब बेसिक सिंपल क्वेश्चन कि अगर आज से 2 साल बाद जब ये प्रॉपर्टी रेडी होगी या 3 साल बाद, सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, कोई मिनिमम गारंटी जो आप कह रहे हो मिनिमम गारंटी आप वहां से दोगे तो क्या होगा वो? सर। सी इनिशियली अमित जी जो हमारा WSC ने जो स्टडी निकाला था कि भाई पर नाइट मैं लेट से इतना चार्ज करता हूँ, और मैं महीने में आपको 10 दिन का फॉर इनिशियल स्टार्ट, क्योंकि टाउनशिप बनेगा तो ऐसे ही नहीं कि पहले दिन भीड़ हो जाएगा बिल्कुल ठीक। सो इन दैट केस दे हैव शोड अस दी 7 years का एनेक्शन, 7 year स्टडी कि भाई 7 साल में मैं इसको कहाँ पर लेके जाऊंगा। सो इट स्टार्टेड विद 7%, 6 point something, 6.84 something percent in first year, and last 7 year में they have reached to 15% assured rental on your property. ओके। And इसमें क्या हुआ ना, when we saw the study, we saw कि उन्होंने अपना rental and number of nights को gradually बढ़ाया है। They would have showed us the 15% rental on a very first day, but ideally क्या है कि वो हमारी कंपनी का बिना है, they cannot fool us, it should be a practical on ground process. So करेक्ट। it is not a commercial property, it is a residential property. First of all thing, ये जो हमारा क्लाइंट ले रहा था वो अपने एक लेजर के लिए ले रहा था और अपनी एक इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा था। So apart from your capital appreciation, एवरेज रेंटल आई वुड से पोस्ट पोजीशन, मैं बोलता हूँ कि आपको 8 से स्टार्ट होके अप टू 5 साल में वी कैन थिंक ऑफ कि 13-14% तक आपका प्रॉपर्टी का रेंटल जाए। सो एंड एक इज देयर बहुत एनी गारंटी फ्रॉम डेवलपर साइड कि हम इतना मिनिमम गारंटी कर रहे हैं, इतनी मिनिमम नाइट से इतने मिनिमम इन्वेस्टमेंट? सर सी वो ना आपका MOU में क्लॉज रहेगा कि हम जब आपका प्रॉपर्टी जब आप WSC को चढ़ाओगे ना, जब आप उसको साइन करते हो उस टाइम पे दैट MOU विल बी साइंड विद यू। ओके। बट क्योंकि अगेन इट इज नॉट अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो मैं एक वर्चुअल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ जिसको मैं बिग बाजार को देने वाला हूँ, है ना। सो वी कैन शो यू दी, मैं एक बार वो दैट दैट लेट दैट कैलकुलेशन गॉट फिक्स्ड, वो कंप्लीट होने ओके। के बाद विल बी एबल टू शेयर दैट प्रपोजल विद यू गाइस एज वेल, सो दैट आप वो पूरी गणित समझा सकते हो अपने क्लाइंट। ओके जी। जी। और दूसरा एक ना बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा था, अभी जब हम लैंड वगैरह जब सर्च करते हैं वहां पे, तो जनरली क्या होता है ना कि जेवर में या नोएडा एक्सप्रेस पे भी लेट्स से हम 137 में बैठते हैं, इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ नोएडा एक्सप्रेस वे। तो यहाँ का प्राइस एंड वर्सेस 500 मीटर 600 मीटर के अंदर के प्राइस में ना बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं होता है। बट वेरी इंटरेस्टिंगली व्हेन दी कोस्टल इज कंसर्न, जब आपका सी लाइन कंसर्न पे आता है ना, तो यहाँ पे जो आपके रेंटल्स है ना सर गोवा में, वो जाते हैं 1,40,000 1,30,000 तक। महाराष्ट्र में इट गोज अप टू 80,000 90,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एंड आप जैसे ही थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना 500 मीटर 600 मीटर बाद, दैट प्राइस ड्रॉप टिल 30,000 35,000। और अगर आप 500 मीटर आगे चले जाएंगे तो आपका वो प्राइस ड्रॉप हो जाता है 15-20,000। सो एवरीबडी सबको पता है कि जो चाम है वो मेरा सी के सामने ही है, सी के अंदर नहीं है मेरा चाम। बिल्कुल ठीक। डन है जी। सो एनीबडी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन या आपको कुछ कंसर्न्स है तो प्लीज डू लेट मी नो बिफोर वी सो स्टार्ट विद द। व्हाट इज लाइक कॉस्टिंग एंड द थिंग उस हाँ पे? जी, मैं वही बोल रहा था, मैं उस पे आ रहा हूँ। सो ओके। इन केस अगर आपको साइट से या ज्योग्राफिकली कुछ समझने में कुछ चाहिए तो डू लेट मी नो प्लीज। वहां से पारसू रिफाइनरी कितनी दूर है? सॉरी सर, पारसू रिफाइनरी कितनी दूर है वहां से? कौन सा वर्ड बोल रहे हैं पारसू आप, क्या बोल रहे हैं? पारसू 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 इन महाराष्ट्र सर।
पारसू रिफाइनरी आ रही है वहां से नजदीक, सबसे बड़ी सर ये आई रिफाइनरी आ नीड रही टू चेक। मैं सर इसका आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस देख के मैं डिटेल्स शेयर करता हूँ इसका। एक्चुअली क्या है ना सर, महाराष्ट्र में ना विद इन दिस जोन ना बहुत सारे, कोई बोलता है फिल्म सिटी आ रहा है, कोई बोलता है कसिनो सिटी आ रहा है, बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट है जो लोग बोल रहे हैं, सी वर्ल्ड आ रहा है। बट जब वो हमारा जो लाइजनिंग के जो लोग हैं वो गोवा में ही है, बाय द टाइम वी डोंट हैव एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड, तो हम उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं अभी। तो जो रिफाइनरी आप बोल रहे हो ना, इसके आई हैव हर्ड अबाउट दिस डेवलपमेंट, बट लेट मी गो थ्रू दी इसका ऑथेंटिक सोर्स देख के आई विल बी लेटिंग यू है। नो। नहीं, आ रही है वो, 100% आ रही है, वहां से नजदीक ही है। आपने जो जो ओके लोकेशन दिखा रहे हैं आप, ओके, कितना दिखा रहा है सर आपके पास? वहां से 80 किलोमीटर होगा, 80 या 100 किलोमीटर, ज्यादा है ज्यादा। ओके सर, ये चिपी एयरपोर्ट के पास ही आ रहा है? जी हाँ, चिपी एयरपोर्ट बनाने का मोटिव भी यही था, रिफाइनरी। ये सर आप देवगढ़ वाली रिफाइनरी की बात कर रहे हैं जो देवगढ़ में आ रही है? नो, पारसू, मे बी इन हाँ देवगढ़। हाँ सर, एक्चुअली क्या है ना, जो रिफाइनरी वाला जोन जो डेडिकेटेड है गवर्नमेंट की तरफ से, वो देवगढ़ के इर्द गिर्द ही है सारा। और दो रिफाइनरी आ रही है एक्चुअली, एक नानार में जो रत्नागिरी में है, जी। और दूसरी आ रही है पारसू। पारसू। हाँ, हम्म। तो ये जो डेडिकेटेड गवर्नमेंट का स्पेस है ना सर, ये देवगढ़ के पास आता है बेसिकली। सो देवगढ़ जो है हमारे यहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव पर है केवल, मालवन से जस्ट पहले देवगढ़ ही पड़ता है। मैं इसका अमित जी थोड़ा इन डिटेल ना, जो सर रिफाइनरी बोल रहे हैं इसका मैं डिटेल हम्म, निकाल के आपको बिल्कुल है ना। बिल्कुल। जी। जी, फॉर श्योर। ओके सो सर इसका जो प्राइस लिस्ट है, सो एज ऑफ नाउ हमने जो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी जो स्टार्ट हुई है ना सर, वो केवल प्लॉट्स की है विलास। अभी हम वी आर नॉट सेलिंग आवर प्लॉट्स, वी हैव गॉट प्लॉट्स ओनली इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल फॉर सेल। ओके, सो हमारा जो प्राइस आता है वो आता है 22,999 पर स्क्वायर मीटर। ओके, सिंस अभी हमारा ये जो प्रोडक्ट है सॉफ्ट लॉन्च में है, तो इस पे 3,000 रुपए का पर स्क्वायर मीटर का इनॉग्रल डिस्काउंट अभी एप्लीकेबल है। तो आपका जो इफेक्टिव प्राइस है वो है 19,999 रुपए पर स्क्वायर मीटर का। ओके, इसमें जितनी भी आपकी कॉर्नर पीएल यूनिट्स है वो 10% पीएलसी पे आती है। ठीक है जी, ये हमारा ना इनिशियल इन्वेस्टर का था, इसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं अभी। फर्स्ट, आपका जो डेवलपमेंट चार्ज है वो 2,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का है। आई मैं अभी मेरे फोन में था, वो मिल नहीं रहा है प्राइस लिस्ट। सो 2,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है, प्लस हमारा जो पेमेंट प्लान है इट इज अ बेटर पेमेंट प्लान देन दिस विच यू आर सीइंग नाउ। सो हमारा जो इनिशियल बुकिंग अमाउंट है दैट इज 10% ऑफ 50 लाख रुपीज। 5 लाख रुपए से आपने बुकिंग, अपना क्लाइंट ने बुक करा दिया प्रॉपर्टी। ऑन रिसीविंग ऑफ एनए, सो इस महीने में हमारा एनए विल बी एप्लीकेबल, हमारा एनए चले जाएगा और उसका एप्लीकेशन ऑफ एनए हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। एनए के ऊपर आपने क्लाइंट ने कंप्लीट करना होता है पूरा 50% अमाउंट, 25 लाख रुपीज। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट जो 25% का चंक क्लाइंट ने देना है वो देना है जब उसके पर्टिकुलर प्लॉट पे उसको रोड का एक्सेस मिल जाएगा तब। और लास्ट 25% क्लाइंट ने पे करना है जब उनका पोजीशन हो जाएगा तब। सो इट इज 50, 25 एंड 25। ओके। सो एनए अभी क्या है ना कि महाराष्ट्र में या गोवा साइड में ना जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है, पीपल डजंट इवन कंसिडर रेरा, दे कंसिडर एनए बेटर देन रेरा, एवरीबडी आस्क फॉर कि भाई एनए आया है क्या। तो अभी हमारे एनए इस महीने अपने होगी, मोस्ट लाइकली इन कमिंग 3 to 4 months, बिटवीन 2 4 months यू विल हैव एनए इन हैंड। सो वो एनए आने पे आपने 50% पेमेंट अभी अपनी कंप्लीट करनी है। एंड सिंस इट इज अ सी व्यू प्रॉपर्टी, तो आप अगर कंपेयर भी करेंगे हमारी सराउंडिंग्स के साथ में प्राइसेस, सो ये बहुत करेक्ट प्राइस पॉइंट पे भी आप एंटर कर रहे हैं। 50 लाख रुपीज फॉर 250 स्क्वायर मीटर इज नथिंग। मतलब अगर मैं गज में बात करूं स्क्वायर यार्ड्स में, तो आपका 16,500 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड रेट का रेट आ जाता है, और 300 गज का आपका यूनिट आ जाता है बेसिकली। तो ये जो प्लॉट्स रहेंगे वहां से भी सी व्यू होगा? सॉरी मैम।
जो प्लॉट्स है उस वहां से भी सी व्यू दिखेगा? जी मैम, तो मैं आपको जो बात बता रहा था ना कॉन्टूरिंग ऑफ लैंड की मैम, उसमें क्या होता है ना, उसमें आपका एवरी टेरेस हैज अ सी व्यू। ओके, सेकंड, अगर लेट से ये जो दो रोज है ना, इसका दरवाजा खुल रहा है इस तरफ और इस वाले प्लॉट का गेट है इस तरफ। ओके, लेट से इसकी बात करता हूँ मैं। सो इसका जो पीछे वाला जो यूनिट है उसके टेरेस से यू कैन हैव अ सी व्यू, बट क्योंकि बीच में आपके 9 मीटर की रोड है, तो दिस प्लॉट ऑन फर्स्ट फ्लोर ही कैन हैव अ सी व्यू बिकॉज इज इन असेंडिंग ऑर्डर. So it is designed in such a way कि most of your units has a sea view from your first floor or ground floor. Okay. But every terrace has a sea view. For that matter, आपका जो contouring of land is concerned, every terrace has a sea view. मतलब आई बिलीव दिस इज मोर सेफ ऑल्सो कि हम यही बोलें कि लाइक जो आपका टेरेस होगा वहां से यू विल बी अ सी व्यू, बिकॉज ग्राउंड फ्लोर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा मुझे लगता है, जब आगे घर बन जाएंगे इट विल बी अ लिटिल बिट चैलेंज। आइडली अमित जी, मैं भी अपने क्लाइंट्स को जो प्लॉट्स में आते हैं ना, तो आई प्रेफर देम कि सर देखो आप समुंदर, यू नो, ऑन योर ग्राउंड फ्लोर यू विल नॉट हैव अ सी व्यू, राइट, बट ऑन योर फर्स्ट फ्लोर मोस्ट ऑफ यूनिट हैज अ सी व्यू, बट ऑन योर टेरेस एवरी यूनिट हैज अ सी व्यू. सी व्यू। और कितना एफएआर कितना है कंस्ट्रक्शन का? सर इस पे जो एफएआर आता है पीछे वाले पोर्शन का वो 1% का आता है, आगे वाले का 0.3 आता है, प्लस इसमें जो परचेज एफएआर का प्रोविजन गवर्नमेंट ने दिया है, दिस इज 1+1, ये वाला पोर्शन, एंड दिस इज 0.3 प्लस पॉइंट, तो दिस अभी इज 0.6, अभी एंड अभी जो प्लॉट हम ले रहे हैं उस पे 1 का एफएआर है, बट वी कैन उसमें 1 प्लस परचेज एफएआर भी है ना इसमें हमारा, तो इसमें अच्छा 2 का परचेज एफएआर है, है. आपके पास 2 का एफएआर है, ओके। हमारे पास 2 का है और आपका इधर आगे वाले जोन का 0.6 का है. सो आज जो बंदा आज आज कस्टमर मैं प्लॉट ले रहा हूँ तो मेरे पास 2 का एफएआर होगा, राइट? 2 का एफएआर आएगा आपके पास. ओके। So on your 250 square meter, you can build on 150 square meter. एंड ऑन योर विला, आप अगर जो विला लेंगे आगे, वो उसमें आपका बाय डिफॉल्ट मोर ऑफ ग्रीन एरिया इंक्लूड हो जाता है इसमें. ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चंस गाइस? What is the costing of villa? अभी ओपन मैम नहीं हुआ है। villas are not for sale as of now, so we have structured the villas before. उसका जो tentative cost आ रहा था ना मैम, so condominium on each floor was costing you around 75 to 78 lakh rupees, and independent villas were costing you around 2.5 CR, जो जमीन से आपका पूरा विला बन रहा था. बट सिंस रेडिसन के थोड़ा सा आने के बाद से ना हमारे विलास जो है वो वापस से रीस्ट्रक्चरिंग के लिए डिजाइन हो रहे हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ वी आर नॉट सेलिंग आवर विलास, सो वी नीड टू सी वेदर वी गोना सेल आवर विलास और नॉट. मे बी हो सकता है कि रेडिसन अगर आता है और वो उसमें आरओआई दे देता है, तो इधर वी कैन हैव इट फॉर रेवेन्यू जनरेशन और वी कैन सेल इट ऑन आरओआई बेसिस, कि सर ये अब आपका लिमिटेड, आप अपनी गिनती के नाइट्स के साथ यू कैन हैव अ पैकेज, यू आर बाइंग अ रियल एस्टेट प्लस आरओआई भी इसके अंदर एडेड है, ऐसा. फिर वो बेसिकली होटल विलास, जैसे होटल अपार्टमेंट्स होते हैं वैसे होटल विलास हो जाएंगे वो बेसिकली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली. जो फ्रंट अच्छा, में इस मिडल में बोथ ऑल विलास मैम, ऑल विलास. all villas? Okay. And how many plots you have total in all? मैम टोटल वी हैव गॉट 300 प्लॉट्स. सो पवन भाई, अगर मैं बोलूँ कि एग्जैक्ट हमारे जो टाउनशिप का जो गेट है वहां से जो बीच है बाय जी वॉक कितना टाइम है या कितना डिस्टेंस है? अमित भाई, ये आपका एंट्री है नीचे से, ये आप स्नेक शेप देख रहे हो हम्म। है ना, ये आपका एंट्री है. इस एंट्री से 40 मीटर पे यू कैन हैव एक्सेस टू दिस बीच. ओके ओके। ओके, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो तो जो आप जब चढ़ोगे ना, उससे आपका रेत जो है ना वो आपके पैरों पे होता है समुद्र सो का. हमारी जो इस एंट्री है वहां एंट्री से 40 मीटर है, राइट? बिल्कुल एंट्री से 40 मीटर है, और अगर आप ऊपर आ गए हैं, अब आप साइड पे हैं, तो साइड से ये आपका पूरा कॉमन एरिया है, यू कैन गो स्टेप वाइज से नीचे जाके आप बीच का एक्सेस ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन अच्छा, आपके. मतलब अपनी साइड से भी हम स्टेप से जा सकते हैं नीचे? हाँ हाँ, तो आपका जो लव होम्स में जो बता रहा था आपको, ओके, उसका एक्सेस तो आपको यहीं से मिलता है ना, तो वो ऊपर से नीचे नीचे तक, से. वो नीचे तक एक्सेस है, बीच तक एक्सेस है हाँ उसका? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके आपके ये जो शायद नीचे तक आते हैं ना. ओके ओके, नाइस। And total project area is? सॉरी मैम, Total project area? 78 75, एकर्स मैम. 78 acres. 70
क्या पोजेशन टाइमलाइन सोच रहे हैं भाई कंप्लीट प्रोजेक्ट? 24 मंथ्स भाई। एनए पे हम लोग अग्रीमेंट जब देंगे क्लाइंट को तो उस पर 24 मंथ्स होगा। दैट इज फॉर सो आई प्लॉट। अगर मैं पूरी टाउनशिप बात करूं तो नहीं, more or टाउनशिप less। की बात कर रहा हूँ मैं। प्लॉट्स तो अच्छा हमारे 1 साल के अंदर डेवलप हो जाए। अच्छा। प्लॉट्स विल नॉट टेक। सो इंक्लूसिव रेडिसन विल बी, अगर मानो रेडिसन इज लाइक ऑन और रेडिसन आता है एक्सेस करने के लिए, तो उनको उनका एक्सेस 2 साल में आ जाएगा। रेडिसन को पास जो टाइमलाइन है, रेडिसन का जो टेन्योर हमारे पास आया था वो 2 साल के अंदर दे हैव टू मेक द एंटायर होटल। द गुड थिंग विद रेडिसन इज कि दैट इज ऑन 10 एकड़ पूरा पोर्शन है उसके पास, यहाँ से लेके पूरा पोर्शन रेडिसन के पास है। उनका बिल्टअप लिमिटेड है सर। उनका बिल्टअप केवल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही है। अच्छा तो ओके। है ना, तो बहुत ज्यादा हाइटेड या बहुत बड़ा नहीं बनाना है उनको राइट कि राइट। दिल। सो ये जो हम इन्फिनिटी पूल की बात कर रहे हैं, दैट विल बी विद रेडिसन और इट विल बी ओपन फॉर एवरीवन? सर देखो, ये फेस करेगा रूम से, लेकिन ये आपका कॉमन रहेगा पूरी जनता के लिए। कॉमन रहेगा, मतलब जो सोसाइटी है अपनी उसके लिए ओपन रहेगा। उसके सो लिए एनीबडी कॉमन है। हु हैज नेक्स्ट टू हु हैज अ प्लॉट, ही कैन आल्सो एक्सेस द ऑल wells। ही कैन यूज ऑल द कॉमन एरियाज। ये क्लब हाउस ओके भी उनका कॉमन है। ओके इनफैक्ट लेट्स से मैं वहां ट्रैवल कर रहा हूँ एंड मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, आई वांट टू गो एंड हैव अ लंच इन रेडिसन। आई कैन गो टू रेडिसन एंड आई कैन आल्सो एंजॉय ऑल द राइट फैसिलिटीज राइट दैट राइट। आर इन कैंप। ओके नाइस। जी So कुछ और क्वेश्चंस? what are the other facility, other amenities? मैम सी, वी आर गिविंग यू दी कॉमन एरियाज लाइक हाइपर मार्केट का प्रोविजन है, मेडिकल स्टोर का प्रोविजन है एंड एक मेडिकल एक मेडिकल प्रोविजन हम दे रहे हैं जिसमें आपको 24/7 आपका मेडिकल कुछ भी आपको कंसर्न ऑन है वो आप कॉल, कर सकते हैं। ऑन कॉल फैसिलिटी ब्लड प्रेशर, डॉक्टर। मतलब माइनॉरिटीज आपकी जितनी भी कवर हो सकती हैं वो हम उस पर प्रोविजन दे रहे हैं। Although Redison will have their own medical facility, then we have got your infinity pool का access, your common areas, waterfall के साथ में hanging shacks and your clubhouse area. So your clubhouse area on 8,000 square feet will have all the indoor games almost. So 8,000 square feet, we are talking about land or we are talking about construction? सर कंस्ट्रक्शन की बात करते कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, ओके। हैं। आप अमित जी, इफ इन केस 21st 22nd, सॉरी, जी राजेंद्र जी यस कुछ मिस्टर पूछ रहे थे पाटिल, आप? सॉरी। फक्त त्याला सॉरी पाटिल जी। ओके प्रवीण भाई कुछ पूछ रहे थे आप? सर ये ओपन प्लॉट जो खरीदते हैं ना, उसमें कुछ कंडीशन है क्या कि कितने दिन में कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, ऐसा कुछ कंडीशन है क्या? सर पोस्ट पोजीशन 2 साल के अंदर आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिल्टअप बना के रखना पड़ेगा ओके विद इन 2 years। ओके। तो मेंटेनेंस जो होगा वो कम्युनिटी का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा और डेवलपर का, और बाद में जो एसोसिएशन वो बनेगी उसका रहेगा। जी सर। अच्छा आपका एरिया। इनफैक्ट मेंटेनेंस से क्वेश्चन आया कि अभी जब प्लॉट का पोजेशन हो जाएगा तो उसका मेंटेनेंस चालू हो जाएगा? सर आपको देखो 2 साल के अंदर डेडलाइन है हमारा, 2 साल तक आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है। ओके, लेट से 2 साल का लास्ट जो 24 मंथ है उसके बाद से आपका मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा वंस यू आर रेडी विद योर प्लॉट। आपका जो ओके। प्लॉट बन जाएगा बाद सो से। मतलब और वो 2026 बहुत, के बाद मेरा मेंटेनेंस चालू होगा? बट बहुत मिनिमल मेंटेनेंस है अमित जी। एक्चुअली क्या है ना, इट इज नॉट जो हमारा हमने जो आपको बिल्टअप का भी जो हम प्रोविजन डाल रहे हैं एग्रीमेंट में, इट इज अ वेरी मिनिमल सो दैट इट शुड लुक यूनिफॉर्म। ऐसा ना हो कि आदमी ने ले लिया प्लॉट डाल के छोड़ा हुआ है। So just to escape from that situation, we are imposing that clause. ओके। तो बहुत बहुत मिनिमल सी इन्वेस्टमेंट है वो। सो बाहर का जो फसाड वगैरह है वो आप मैनेज करेंगे या कोई रैंडम कुछ भी बना नहीं सकता सर, है? मैनेज कर, ना 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 मैनेज है सर। पूरा एक मैनेज है। सैंपल है, 250 पे 150 ही बन सकता है और उसमें भी 3 साइड ओपन बन सकता है। ऐसा है, ओके मतलब एवरी इमेज, दो प्लॉट है 250 मीटर 250 मीटर, तो आप बीच में बना सकते हैं, तो 3 साइड ओपन आपको छोड़ना मैंडेटरी, ऐसा है। ओके ओके। और ये कुछ है ऐसा फेसिंग कुछ है इसका नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट जिस मैम है ना, प्लॉट्स में? हाँ जी मैम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। So this is the raw image of layout. So this is your north, if you can see. ये आपका नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया और साउथ हो गया।
All of your units either they will be northeast facing or southwest facing, ऐसा है. ओके. Okay. सो पवन भाई, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट रो में, इस वाली रो में, जिसका जी. एक्सिस इस तरफ है, अपोजिट साइड है, राइट, जी. जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग आएगा, सो हाँ जी. उसमें इफ यू लुकिंग फॉर सम यूनिट मिल जाएगी? सर 84 यूनिट्स हमारी सोल्ड आउट है, जिसमें से मेजरली कॉर्नर्स गई हैं, नीचे की रोज सारी बिकी हुई हैं ये दोनों. ओके. और 300 मीटर की ये पीछे के ये 6 चक ये पूरा गया हुआ है. और ये वाले कॉर्नर्स भी गए हुए हैं, जो क्योंकि ना यहाँ पे आपका पर्सनल पार्क आ रहा था. सो हमारे आर्किटेक्ट ने सजेस्ट किया था कि भाई आप जो ये कॉमन जो एरिया ना, इसमें आप आड़ा टेढ़ा प्लॉट ना काट के ना लीव इट एज अ ग्रीन स्पेस, बिकॉज वो आपका यूनिट बिकेगा नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, यू नो. तो ये हमने ग्रीन प्रोविजन छोड़ा है, और 10% पीएलसी क्लाइंट को जब लगा कि भाई यहाँ पे भी देना और अपना पर्सनल ग्रीन मिल रहा है मुझे मेरे साथ, तो मैं वो मेंटेन करूंगा. तो ये वाले जो कॉर्नर यूनिट्स है ये वाले बिके हुए हैं, ये कॉर्नर कुछ कुछ गए हुए हैं. फ्रंट की 2 रोज पूरी सोल्ड आउट है सर, ये दोनों. बाकी बीच बीच के चंक्स गए हुए हैं, जैसे जिसको 6 यूनिट एक साथ चाहिए थी, तो 6 यूनिट यहाँ पे उनको स्लॉट मिला था, वहां ले लिया ऐसा. ओके जी, कुछ और क्वेश्चंस किसी का? तो ये 50% पे करने के बाद अगर बीच में एग्जिट हो सकते हैं क्या, और फुल पेमेंट के बाद ये एग्जिट हो सकते हैं? सर Approximate. रीसेल आप एग्जिट आप कभी भी कर सकते हैं. यू आर फ्री टू सेल योर प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हमारे एग्रीमेंट पे ना वी विल पुट अ क्लॉज डाल रहे हैं हम लोग कि लेट्स से व्हेनेवर यू वांट टू सेल योर प्रॉपर्टी, you need to consider the company Vumeki Group as a first buyer of your property. Okay. Now when I say that it is just to make you understand कि आप let's say बीच में exit करना चाहते हैं and you have a better proportion या better proposal in the market. So you need to consider us for as a first buyer. I will take your proposal कि भाई ठीक है आपने 20,000 पे लिया, आज बिल्डर का रेट 35,000 हमने कर दिया है. बीच में मैं आपको आप डिमांड करते हैं 30,000 रुपए, बट मैं नेगोशिएट करता हूँ, नहीं सर मैं आपको 28 या 27 देना चाहूंगा. तो एटलीस्ट उससे ना आपको एक आइडिया लग जाता है, यू हैव अ बैकअप प्लान कि भाई चलो कल को मुझे बेचना है तो मैं फर्स्ट बायर जो मेरा डेवलपर है उसको मैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिट करके ऑप्शन दे सकता हूँ. सो मैं अपनी कैलकुलेशन सोचूंगा वो ये सोचूंगा कि मेरा जो प्राइस मैंने एस्टेब्लिश कर दिया है उसके किस करेक्ट पॉइंट पे आके मैं आपको एग्जिट दे दूं और उस यूनिट को मैं बड़े रेट पे बेच दूं. सो यू कैन सेल ऑफ योर प्रॉपर्टी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ फॉर दैट मैटर. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ये 50% के बाद ना एक 25% का पेमेंट का टाइम आता है ना, आप कुछ बोल रहे जी. थे, आप रोड एक्सेस आने के बाद रोड. कुछ बोले थे ना, जी. तो कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली उसका? 1 साल सर वगैरह? आज से आप लेके चलिए, सी अगेन वो आपका फ्रंट और बैक रो के ऊपर डिपेंड करता है, बट आप लेके चलिए 8 महीने से 12 13 14 महीने तक गैप रहेगा. मतलब 8 से 8 महीने में आपका फर्स्ट रोड का काम हो जाएगा और लास्ट आपका हो जाएगा 14 मंथ्स. ऑल्दो हमारा जो रोड एक्सेस है हमें जी वो रेडी हो गया पूरा. तो ओके पहले वी नीड टू हमें ट्रैक करके जाना पड़ता था चल के, अब आपका गाड़ी चली जाती है साइड तक. ओके प्लस ये मंथ में हम लोग अभी बारिश बहुत एक्सट्रीम है वहां पर, तो वी आर ट्राइंग कि हमारा फेंसिंग और पूरा वो कंप्लीट हो जाए एज सुन एज द रेन स्टॉप्स. ठीक है. और उसमें कंस्ट्रक्शन का हेल्प मिलेगा आपके तरफ से, अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बाहर का इन्वेस्टर है, अगर इफ ही कैन Yes, बेयर द ready, sir. प्राइस, यू कैन. बिल्कुल बिल्कुल सर. ऐसे जो टाउनशिप या ऐसे जो प्रोडक्ट बनते हैं ना उसमें डेवलपर हैज उन्हीं के ऊपर आता है सारा कंस्ट्रक्शन का. You are living in Delhi, all our clients are from Delhi, most of I think 90%. So they cannot have the pain of going there, hire a contractor and give them work for making the construction. ठीक है, सो आप पर सेफ्टी का हिसाब से चार्ज करोगे? बिल्कुल सर. जी डीएम कान्हा जी प्लीज बताइए, आप कोई क्वेश्चन था? हाँ सर. How high from the sea level, sir? 77 meters sir. 77 meters. And how far from Arambol, sir? So Arambol se 1 hour distance. 1 hour. distance. Thank you, sir. That's it. And from Mopa? Ma'am, from Mopa it is 60 kilometers and 1 hour 15 minutes only. Okay. तो मतलब 1 घंटा अप्रॉक्स हमें लगता है नॉर्थ गोवा जाने में मोपा से, तो दिस इज 15 मिनट्स. बिल्कुल. एक्चुअली अमेजी जो क्वेरिम बीच है ना गोवा का,
that is only 40 minutes from us, 45 minutes. But Arambol is a famous destination, so we consider Arambol as a connecting point. Correct. ऐसा. जी. ओके, कोई और क्वेश्चन है और वी कैन सम अप द सेशन. Please share your number so that if you श्योर are going अंशु to. जी, मैं ऑलरेडी एक ग्रुप बना दिया है. I'll share the link. Please join the group and वहीं पर पवन भाई will share the details. Sure. So I'll show you the, अभी हमने जैसे sum up किया है ना, तो उसमें ना I'll show you this thing so that you'll be able to understand the land की कैसा इसका elevation कैसा आएगा. ये आपका लैंड का प्लेटो है. ना उमेश जी, ये देखिए, ये एंट्री है, ये आपका कालवे, ये दिस इज योर गवर्नमेंट रोड coming from state highway. So if you'll take right, you'll enter the village. If you'll go straight, you'll enter on beach, and if you'll go left ऊपर, ये आपका तो 77 मीटर है. और ये अब आपका elevation. ओके. All your hanging shacks will be here. Waterfall बीच में, infinity pool. Then क्योंकि ये ग्राफिक्स है तो ये यहाँ पे लिमिटेड हो गया. This point will be somewhere here, है ना. तो ये आपको जो 500 मीटर का रोड लाइन है, यहाँ तक जाएगा पीछे. ओके. So all your villas will be right here. And now if you'll see the contouring of land, ये देखिए आप पीछे की तरफ ऊपर जा रहा है. ये थ्रू आउट ऐसे ऊपर चलेगा. ये आपका प्लॉटेड एरिया 27 एकड़. ये आपका, तो हल्का स्लाइटली अपर साइड है. हाँ जी. सो ये लैंड है, ये आपका प्लेटो है, फ्लैट फ्रंट. ये देखिए अब इसमें एलिवेशन यू कैन सी ऊपर जा रहा है ना, हाइटेड हो रहा है टाइप उसके साथ. ये आपका एक्सेस है ऊपर आने का. हैंगिंग शैक्स इधर, वाटरफॉल, ये आपका नीचे बीच का एक्सेस, और ऊपर जाके आप यहाँ पर जा सकते हैं. सो ये जो फ्रंट वाला है यहाँ पर रेडिसन और वो स्विमिंग पूल और ये सब चीजें एडिसन सर एंटर करते ही एडिसन आ जाएगा. रेडिसन आ जाएगा. ओके, ठीक है. कूल. And in case any of, जैसे मैं देख रहा था मिस्टर पाटिल एंड मिस्टर रेड्डी आर देयर, तो इन केस आप लोग अगर आसपास हैं तो मोस्ट लाइकली आई विल बी देयर ऑन 25th, 21st, 22nd एंड 23rd. ये लोग हैदराबाद में हैं पवन भाई. अच्छा, so I'll try taking Mr. Amit with me. I'll take him for a site visit now. है ना, in case कोई आसपास है तो you can call them so that I'll be there, तो easy रहेगा समझाना. Sure. We can plan the sometime जब भी आपका विजिट हो तो एक बार हम डिस्कस करके जो भी लोग होंगे आसपास they can come. पक्का जी, for sure, जी. for sure. ओके, कोई और क्वेश्चन है और वी कैन सम अप. चलो कूल. थैंक यू पवन भाई. आई बिलीव Thank you हमें ना so much. 2-3 बार और रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपकी फॉर द ट्रेनिंग Anytime. सेशन, बिकॉज लोग फ्रीक्वेंट ज्वाइन करते हैं, फिर कुछ लोग और बाद में आते हैं, राइट. तो थोड़ा सा बिकॉज अभी वोमेकी फॉर अस इज अ न्यू ब्रांड, और आज थोड़ा वोमेकी का बैकग्राउंड भी डिस्कस नहीं हुआ, तो आई बिलीव नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो वोमेकी भी थोड़ा बैकग्राउंड विल लाइक टू डिस्कस. We'll start with Right. Vomaki that. करेक्ट. और फिर अकॉर्डिंगली लेट्स मूव थिंग्स बेटर थिंग. ठीक है, देखते हैं आगे क्या बिजनेस निकल कर आता है. Done, चलिए. Amit जी. कूल. थैंक यू सो मच. Thank थैंक यू you so एवरीवन. much team. Thank you so much. यस, अभी आगे श्री प्रोग्राम का सेशन है. सो जो भी श्री प्रोग्राम का पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो प्लीज बी देयर ऑन दी कॉल. कशिश जी, आई बिलीव शी इज ऑलरेडी हियर. या कशिश जी इज हियर. पवन भाई, थैंक यू सो मच. Done जी, thank you so much. I'll take you मैं आपको पर्सनल पे कनेक्ट करता हूँ अभी. पक्का. Thank you so much. जी. Thank you. Thanks, हाय Amit. कशिश जी. Hello, hi Amit. Amit, can you please make me host? यस, आई एम मेकिंग इट. All right. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How is everyone doing? Fine, madam. We are doing So fine. you are the host now, and Mr. Khanna. I'll take a leave. Yes, absolutely, Amit. Thank you so so much. much. Thank Okay. you. Bye.